Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So let's start our today's lecture. Today I start type number 4. The topic is variance and standard deviation. Okay, so first of all, finding for variance and standard deviation, we have to find first of all we mean. That means x bar is equal to summation xi upon n. And this is formula for ungrouped data where n is a number of observations. Okay, so you also know that for x bar is equal to summation xi upon n. Then we have to find a standard deviation. That means we call this sigma or standard deviation. That means SD. We use this notation or this. Okay, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक नोटेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंबल के रूप में. The formula is square root summation xi square upon n minus summation xi by n whole square. Okay, so ये हमारी फॉर्मूला है. एक बार फिर से बोलिए. Square root summation xi square upon n minus summation xi upon n whole square. So what is summation xi square? That means the square of observation. That means हमें xi दिया होगा तो उसको इंडिविजुअल स्क्वायर करके उसका टोटल करना है. एंड n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और यहाँ पे क्या है समेशन xi अपन n. तो ये पूरा का पूरा क्या हमारा x बार है. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x बार की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है और जो पूरा अभी इसका आंसर माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है. एंड देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या करना है ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको निकाल के उधर शिफ्ट कर देना है. देन वी गेट अ वेरिएंस. समझ में आ रहा है. ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n होल स्क्वायर. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. दिस इज फॉर मीन. This is standard deviation and also this formula is for variance. So I think आपको समझ में आ गया. फॉर्मूला इजी है. एक बार फिर से बोलिए. स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या फाइंड आउट करना होगा मीन और वेरिएंस ही फाइंड आउट करना होगा. सो वेरिएंस की फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n होल स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है. अभी हम इस पर डिपेंडेंट सम करने वाले तो ये जो फॉर्मूलाज है आप प्रॉपरली माइंड में आप फिट कर दो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला एक बार देख लो. उसके बाद हम सम्स करने वाले डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूलास. Find the mean and standard deviation for the following data. The first sum is exercise 15.1. First sum 6, 7, 10, 12, 13, 14, 8 and 12. So सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. So this is your xi and obviously this is your xi square. Because we have to find xi square, summation xi square for finding our variance. So 6, 7, 10, 12, 13, 14, 8 and also 12. So this gives us summation xi is equals to 6 plus 7, 13, 23, 35, 35 and 38, 48, 52 and 62. Then we get 62 and 8 70 80 and we get final total is 80 72. Okay, 13 23 25 35 38 48 48 62 62 plus 8 that means total में कुछ 6 7 10 12 6 7 10 12 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स. यहाँ पे 4 है 4 8 and 12. So we get 72. Okay, so see us 36 here 49 we get 100 144 169 16 64 and 144. So finally total of summation xi square is equals to I have the final answer which is 722. ओके 722. तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गए. सो फाइनली हियर n इज इक्वल्स टू वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो वी नो दैट x bar is equals to mean x bar is equals to summation xi upon n. That means we have 72 divided by x. We have final answer is 8 9s are. So x bar is equals to finally we get 9. Okay, perfect. And variance VARIA variance sigma square is equals to summation xi square upon n minus summation xi upon n which is whole square. So that implies sigma square is equal to summation xi square. That means 722 divided by 8 and minus we have summation xi upon n answer which is 9
square. So that implies sigma square is equals to 722 minus 81 divided by 8. So that implies sigma square is equals to, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 8 है, ओके, और माइनस 81 है. सो टेकिंग एन एलसीएम वी गेट 722 minus 81 into 8. So we get 680 into 8. So we get 640 and plus 4. That means we get finally 648 and divide by 8. So that implies sigma square is equals to, we get 52 and 22. So we get 74 by 8. That implies final sigma square is equals to, I have the final answer which is 9.25. आप डिवीजन करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. ओके, 22 प्लस 52 दैट मीन्स 54 एंड 74. ओके, सो इस तरह में ये फाइंड आउट करेंगे. हमें ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, ओके, उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. समेशन एक्स आई मतलब ये सभी का टोटल करेंगे. उसके बाद समय एक्स आई स्क्वायर मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन दिए उसके हम स्क्वायर करेंगे और उसका टोटल करेंगे. फाइनली वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन दैट मीन्स समेशन एक्स आई अपन एन. ओके, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ formula of variance that means sigma square is equal to summation xi square upon n minus summation xi upon n whole square. Again put the value and get the answer of x bar and sigma square. So this is your final answer. आपके लिए दो सम होमवर्क में दे रहा हूँ. फर्स्ट वाला है एग्जाम्पल नंबर 8 और उसके बाद है 15.2 का थर्ड सम है. फर्स्ट में कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 3, 6 and 4 10 मतलब n इज इक्वल टू वी हैव 10. ओके, सो जो भी हमने प्रीवियस सम किया सेम एज उसको फॉलो करके ये सम कंप्लीट करना है. और उसके बाद हमारा 15.2 का थर्ड है, उसमें क्या है, फाइंड 10 मल्टीपल ऑफ 10, फाइंड 10 मल्टीपल ऑफ 3. ओके, मतलब जो हमारे 3 का टेबल है, बराबर, तो 3 के मल्टीप्लाई के 10 तक हमें कितने आंसर मिलेंगे उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. तो आपके उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सबसे पहले 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and obviously last 30. So count करेंगे हम कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. There are 10 numbers. Okay, तो ये numbers का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. सो आई थिंक ये दो सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और ये कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली देख लो और एक बार कि आई थिंक ये नया टॉपिक था हमारा, आज हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आए नहीं है, उसके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर तक आएंगे. ओके, तो आज हम सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा. मतलब अभी हम मीन और वेरिएंस पर ही फोकस करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आएंगी तब हम उसकी बात करेंगे, पर उसमें कुछ नहीं करना है. जो हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे ना उसका हम सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. ओके, इस क्वेश्चन एक बार देख लो. 15.2 second sum, first and natural numbers. So answer here, first and natural numbers 1 2 3 up to dot 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 n. Okay, so first of all we have to find mean. X bar is equals to summation xi upon n. So that equals to the sum of all n, sum of all natural number we get 1 plus 2 plus 3 plus up to dot 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 plus n divided by n. Okay, we know that 1 plus 2 plus 3 up to n that we may write in a summation form, that means summation n upon n. समझ में आ रहा है. अगर हम इसको मर्ज कर देंगे, बराबर ना, 1 plus 2 plus 3 up to n है, उसको मर्ज करके हम लिखना होगा. ओके, तो सिंपल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n हम लिख सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n, n n plus 1 by 2 होल डिवाइड बाय n, बराबर, और ये 2 नीचे आ जाएगा. सो फाइनली x बार वी गेट n n plus 1 डिवाइड बाय 2n, n कैंसल. So that implies x bar is equals to n plus 1 by 2. This is your final mean answer. Now we find our variance. So variance sigma square is equals to summation xi square
अपन n माइनस सिग्मा xi अपन n. So we have that implies sigma square is equals to summation xi square, that means 1 square plus 2 square plus up to plus n square divided by n minus n plus 1 by 2 whole square. So that implies sigma square is equal to summation n square divided by n minus we have, अगर यहाँ पे हम x बार लिख देते हैं तो एक स्टेप थोड़ा हो जाएगा, माइनस n plus 1 by 2 whole square. That implies sigma square is equal to, we know the formula of summation n square, we have n plus 1 2n plus 1 by 6 whole divided by n minus n plus 1 whole square divided by 4. 6 नीचे आ जाएगा. That implies sigma square is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6n minus n plus 1 whole square by 4. So n cancel, taking common n plus 1 in a numerator and in a denominator taking as common 2. So n plus 1 or divided by 2 common निकाल देंगे. So we have 2n plus 1 by 3 minus n plus 1 by 2. Taking an LCM, we get sigma square is equals to n plus 1 by 2 in a bracket. This term multiplied by 2 and this term multiplied by 3. We get 4n plus 2 minus 3n minus 3. Okay. So divide by 6. So that implies sigma square is equals to n plus 1 by 2 in a bracket 4n minus 3n and 2 minus 3, that means minus 1 divided by 6. So here we have the formula of a plus b and a minus b. So we may write that implies sigma square is equals to n square minus 1 divided by 12. So this is your final answer for variance. समझ में आ गया हमने क्या किया. हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स है. ओके मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपन समेशन xi मींस द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दैट मींस 1 + 2 + 3 अप टू n प्लस n. अभी उसको हम सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन n लिख सकते हैं, सिग्मा n लिख सकते हैं. एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n, दैट मींस n plus 1 by 2. So we apply that formula. 2 going in denominator, so n cancel, so finally we get x bar is equal to n plus 1 by 2. And also we know the formula of variance, sigma square is equal to summation xi square divided by n minus summation xi upon n whole square. Okay, so yeah, we have the formula, just put the value. Okay, summation xi square means the sum of square of all n natural numbers, so 1 square plus 2 square plus up to n square divided by n. So we may write the simple form, which is summation n square, and the formula of summation n square, which is n plus 1 2n plus 1 by 6. 6 going in denominator, so n cancel. We have taking a common n plus 1 by 2. So in a denominator and in a bracket, the term is 2n plus 1 by 3 and minus n plus 1 by 2. Because यहाँ पे स्क्वायर है, एक बाहर निकल गया और डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकल गया, तो we have n plus 1 by 2 और यहाँ पे 2n plus 1 डिनोमिनेटर में से 2 निकल गया. We have 3, taking an LCM, and finally we get the formula of a plus b, a minus b, we get a square minus b square, that means n square minus 1 and divided by 12. So this is your mean and variance, and I think आपको समझ में आ गया होगा. Okay, so ये एक बार अभी हम न्यू फॉर्मूला देखने वाले हैं. कौन सी फॉर्मूला है, फॉर ग्रुप डेटा फॉर डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मिसिंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. ओके, सो हमारे पास ग्रुप डेटा में देर आर 2 सब टाइप्स, मतलब वहां पे 2 अलग अलग टाइप है. एक डिस्क्रीट मेथड है और एक कंटिन्यूअस मेथड है. तो हम डिस्क्रीट की बात करते हैं. सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू समेशन fi फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो x बार फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन n. तो आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए होंगे, तो इंडिविजुअल आपको मल्टीप्लीकेशन करके उसका टोटल करना है. डिवाइड बाय n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n. हमने जब मीन डेविएशन देखा, बराबर ना, उसमें हमारा क्या था, मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार था, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट था, बराबर ना. मतलब हम xi माइनस x बार फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव पॉसिबल है, बराबर, नेगेटिव आएंगे.
बट फाइनल आंसर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हम फाइंड आउट करना है और उसका हम fi के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका हमें फाइनल टोटल करना है और डिवाइड बाय n। सो वी गेट वेरिएंस एंड फाइनली वी गेट व्हाट वी हैव टू, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया? फॉर्मूलाज एक बार देख लो। ये दो फार्मूला तो आपको पता ही है एक्स बार की, ये आपके लिए नई फॉर्मूला है। ओके, सो इसे एक बार देख लो। Exercise 15.2 fourth sum, we have xi and fi. Okay, we have to find mean and variance of the following data। मतलब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो ओके, लेट सी। ओके, तो आंसर में सबसे पहले हमें क्या लेना है, तो कॉलम xi का कॉलम आएगा, fi का कॉलम आएगा 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30 और fi क्या है हमारे पास 2, 4, 7, 12, 8, 4 and 3। So summation fi we get total कितना होगा 6, 13, 25, 33 and 40। तो समेशन fi हमको मिला 40। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, fi xi फाइंड आउट करेंगे। सो fi xi इज इक्वल्स टू 6 2 12, 40, 98, 18 into 12, I have the answer 216 and 24 into 8, that means we get 192, 28 into 4 we get 112 and finally 90। So summation fi xi we get, I have the final answer which is 760। उसके बाद हमारा क्या आएगा, xi minus x bar, xi minus x bar square and of course fi xi minus x bar whole square। So first of all we have to find mean, we know that, or here n is equals to summation fi is equals to 40 and of course we know that the formula of mean x bar is equals to summation fi upon n। So 760 by 40, x bar we get 19, subtracting by all observation, that means xi by x bar we get first 6 minus 19 minus 13, then 10 minus 9, उसके बाद minus 5, then minus 1, 24 minus that means 5, 28, 9 and 30, 11। So square of xi minus x bar, that means 169, 81, 25, 1, 25, 81 and 1 to 1। Okay, now multiply xi minus x bar whole square with our frequency। So first answer is 338, उसके बाद हमारे पास सेकंड आंसर है 324, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आंसर है 175 and then our second answer is 12 and then next answer is 200 and उसके बाद हमारा नेक्स्ट आंसर है 324 and then our last answer is 363। ये हमें कैसे मिले, तो आप देख सकते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स सिक्स एंड सेवन सेवन। Multiply each and every fi with related to their xi minus x bar whole square। So finally we get this kind of answer। Now summation fi xi minus x bar whole square। So finally I have the final answer which is 1736 and also we know that variance sigma square is equals to, we know the formula, summation fi xi minus x bar whole square and divide by n, where n is equals to summation fi is equals to 40। So put the value, get the answer, we get 1736 divided by 40। So sigma square is equals to, I have the final answer 43.4। So this is your final answer। I think आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास xi है, fi है, समेशन fi कर देना है, टोटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद fi xi इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद समेशन fi xi फाइंड आउट करेंगे, फिर हम मीन फाइंड आउट करें। मीन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, समेशन fi xi
and divide by n is equal to 40 and summation fi total of fi xi that means 760 upon 40 so 90 के साथ कैंसिल होगा x बार इज इक्वल टू 19 अभी xi है तो वो 1 by 1 हम x बार में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेंगे उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा और उसके बाद ये जो आंसर मिला उसका हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वी गेट आंसर 1736 और this value put in our formula sigma square that means summation fi bracket xi minus x bar whole square divided by n put the value get the answer finally you get sigma square is equal to 43.4 and x bar is equal to 19 so depending on this sum आपको एक सम मैं होमवर्क में दूंगा इसके बाद जो आपको होमवर्क में करना है ओके स्टूडेंट्स ओके तो आपके लिए ये एक सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 15.2 का फिफ्थ सम है एफ आई और एक्स आई आपके पास है एक्स आई और एफ आई है एफ आई का टोटल करना है सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है और उसके बाद मीन फाइंड आउट करने के बाद आपको सभी एक्स आई को 1 by 1 मीन में से सब्ट्रैक्ट करके एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा उसका एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका टोटल करके फाइनली वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट करके आपको आंसर लाना है तो ये सम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ तो आज हम इसी का यहाँ पे स्टॉप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हमारे डिस्क्रीट मेथड के थे नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यूस मेथड के देखेंगे और डिस्क्रीट मेथड पे भी डिपेंडिंग थोड़े सम्स है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू